ایک سوال ہے جو صدیوں سے اسلامی مفکرین اور عالموں کے درمیان موجود ہے، ایک ایسا سوال جس نے ایمان والوں کو حیرت میں ڈالا، شک کرنے والوں کو چیلنج کیا اور خدائی حکمت پر گہری سوچ وچار کی دعوت دی۔ اللہ جو سب کچھ جاننے والا اور سب سے حکمت والا ہے، کسی جانور کو پیدا کر کے اسے حرام کیوں کرے گا؟ وہ بنانے والا جس نے ہر زندہ چیز کو ایک مقصد اور مکمل ترکیب سے بنایا، اس نے سور کو اس زمین پر کیوں رکھا؟ اسے گھومنے اور اپنی نسل بڑھانے کی اجازت کیوں دی؟ اور پھر بھی اس مخلوق اور اپنے آخری پیغام پر چلنے والے مومنوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والی لکیر کیوں کھینچ دی؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے اور اس کا جواب بھی عام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو شروع سے آخر تک جانیں گے تو آپ کو نہ صرف اس سوال کا جواب ملے گا، بلکہ یہ آپ کے اللہ کی حکمت، قرآن کی گہرائی اور اسلام کے معجزے کے بارے میں سوچنے کا نظریہ ہی بدل دے گا۔ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کمنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کون سے شہر یا کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو مکمل حساب کتاب سے بنایا ہے۔ اس نے کہکشائیں، ستارے، سمندر، پہاڑ، ندیاں، جنگل، کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں اور زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور اس نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی بغیر کسی مقصد کے وجود نہیں رکھتا۔ کوئی بھی مخلوق بے مقصد سانس نہیں لیتی۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ بغیر وجہ کے کوئی حکم نہیں دیتا، اور اللہ اپنی گہری خدائی حکمت کے بغیر کسی چیز سے منع نہیں کرتا، جسے کبھی ہمارا محدود انسانی دماغ سمجھ لیتا ہے اور کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ سور انہی موضوعات میں سے ایک ہے جہاں انسان جب وہ دھیان سے دیکھتا ہے، سائنس کی نظر سے، میڈیسینز کی نظر سے، روحانی سمجھ کی نظر سے، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سنت کی نظر سے، تو اسے تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا، اس دنیا کے بڑے نظام میں اس کا کیا کردار ہے، اور اللہ نے انسانیت پر اپنی لامحدود رحمت کے ناطے وہ مقدس حد کیوں مقرر کی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے یعنی تخلیق سے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس نے اس کو ایک مکمل نظام کے طور پر بنایا، ایک ایسا جڑا ہوا زندہ نظام جہاں ہر مخلوق کا ایک کردار ہے۔ مدھو مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے، گدھ مردہ جانوروں کو صاف کرتے ہیں، کینچوا مٹی کو نرم اور زرخیز بناتا ہے، شارک سمندر کا بیلنس برقرار رکھتی ہے۔ ہر زندہ چیز چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی، عجیب یا بے معنی کیوں نہ لگے، زمین کے اس بڑے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم میں ایک کردار ادا کرتی ہے، اور سور بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ایکو سسٹم کے اعتبار سے سور ایک اومنیوور اور اسکیونجر یعنی گندگی کھانے والا ہے۔ اس کا ہاضمے کا نظام ایسا بنایا گیا ہے جو ایسی چیزیں ہضم کر لیتا ہے جنہیں دوسرے جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سڑتے ہوئے پودے، بیمار گوشت، ویسٹ، گندگی اور ایسی بایولوجیکل باقیات کھاتا ہے جو زیادہ تر دوسری مخلوقات کے لیے خطرناک یا بیکار ہوتی ہے۔ ایکولوجی کی زبان میں سور ایک صفائی کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے بایولوجیکل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہے، اور یہ پہلی وجہ ہے کہ اللہ نے سور کو کیوں پیدا کیا۔ انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں، بلکہ زمین کو صاف رکھنے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے۔ اس پر گہری سوچ وچار کرے۔ اللہ جو سب سے بڑا حکمت والا ہے، اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کا جسم گندگی کو پروسیس کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس کا سٹمک عام جانوروں کے مقابلے میں بہت کم وقت میں چیزوں کو ہضم کر لیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر جانے والے زہریلے مادوں، پیراسائٹس اور بیماری پھیلانے والے جراثیم کو پوری طرح ختم اور خارج نہیں کر پاتا۔ یہ جو کچھ کھاتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ اس کے گوشت میں جذب ہو جاتا ہے، جس میں نقصان دہ عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کا جسم ایک زندہ فلٹر کی طرح ہے جو ماحول سے آلودگی کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، لیکن ایک عام فلٹر کے برعکس جو گندگی کو محفوظ طریقے سے روک لیتا ہے، سور کا گوشت اس سب کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جو بھی وہ پروسیس کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ بایولوجی کا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیزائن ہے، یہ حکمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جو جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، جو اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے ہر ذرے اور ہر سیل کی فطرت جانتا ہے، اس نے اپنی آخری کتاب میں واضح اور مضبوطی سے فرمایا، اس جانور کو کھانا
तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह कुरान मजीद की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 173 में फरमाते हैं, उसने तुम पर मरे हुए जानवर का मांस, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। लेकिन जो शख्स मजबूर हो जाए, ना तो बगावत करने वाला हो और ना ही हद से बढ़ने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत बहुत अजीम है। अल्लाह सूअर के गोश्त को खून और मर्दार के साथ उन चीजों में शामिल करता है जो नापाक, नुकसानदेह और हराम है, और फिर भी वो आखिर में रहमत का जिक्र करता है। वो फरमाता है कि अगर कोई शख्स वाकई मजबूर हो, मौत के डर से, और उसके पास कोई और रास्ता ना हो, तो रहमत का दरवाजा खुला है। यह हमें इस्लामी पाबंदियों की फितरत के बारे में एक अहम बात बताता है। ये कोई सजा नहीं है, ये अंधी इताअत का कोई इम्तिहान नहीं है जो मोमिनों को तकलीफ देने के लिए बनाया गया हो। ये हिदायत है, ये हिफाजत है, ये मोहब्बत है जिसे खुदाई कानून के जरिए जाहिर किया गया है। यही पाबंदी कुरान में सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 145 और सूरह अन-नहल आयत नंबर 115 में दोहराई गई है। कुरान में 4 मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ने इस मुमनात को दोहराया है। इस्लामी उलमा के मुताबिक जब कुरान में किसी चीज को कई बार दोहराया जाता है तो इसकी बहुत अहमियत होती है। ये इशारा देता है कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये कोई कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है, ये इंसानियत की हिफाजत के लिए एक मजबूत, वाज़ेह और खुदाई तौर पर मुकर्रर की गई हद है। अब आइए देखते हैं कि साइंस ने इस मखलूक के बारे में क्या दरियाफ्त किया है, क्योंकि कुरान के सबसे बड़े मौजिज़ों में से एक ये है कि ये ऐसी सच्चाइयाँ बयान करता है जिन्हें साइंस सदियों बाद साबित कर पाई। जदीद पैरासाइटोलॉजी ने जाहिर किया है कि सूअर ऐसे बेशुमार पैरासाइट्स और पैथोजेंस का घर है जो इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। पहला है ट्रिकोनेलुस पायरेलिस, जो ट्रिकोनोसिस नामक बीमारी का बाइस बनता है। ये छोटा कीड़ा सूअर के गोश्त के अंदर रहता है और नशाओ नुमा पाता है। जब कोई इंसान सूअर का ऐसा गोश्त खाता है जो सही तरह ना पकाया गया हो, तो ये पैरासाइट्स जिंदा रह जाते हैं और इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। फिर ये खून के जरिए सफर करते हैं और इंसानी पत्तों में घुस जाते हैं, खास तौर पर दिल और डायफ्राम के इर्द गिर्द। इसकी अलामत शदीद होती है, बुखार, पत्तों में दर्द, आंखों के इर्द गिर्द सूजन, और शदीद हालत में दिल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। 14 सदियों तक माइक्रोस्कोप से पहले कुरान ने फरमाया ये गोश्त मत खाओ। दूसरा है टीनियोसोलियम, सूअर का टेप वॉर्म। एक शख्स न सिर्फ कच्चा सूअर का गोश्त खाने से बल्कि उसके फ्यूजल के साथ राब्ते से भी इसका शिकार हो सकता है। इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद ये टेप वॉर्म दिमाग तक जा सकता है और न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम की बीमारी पैदा कर सकता है, जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में बड़ों में मिर्गी की सबसे बड़ी वजह है। तसव्वुर करें एक ऐसा पैरासाइट जो खाने के जरिए दाखिल होता है और इंसानी दिमाग में जाकर दौरे और मौत का सबब बन सकता है। तीसरा है हेपेटाइटिस ई वायरस। साइंसदानों ने तस्दीक की है कि सूअर इस वायरस का एक बड़ा जखीरा है। हालांकि सेहतमंद अफराद में यह काबिज इलाज होता है, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों के लिए यह जानलेवा हो सकता है। सूअर इस वायरस को अपने जिस्म में बगैर किसी वाज़ेह निशाने के रखता है। चौथा है MRSA, जो एक खतरनाक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है और सूअर पलने वाले माहौल में काफी मिकदार में पाया गया है। और पांचवा, शायद हालिया तारीख से सबसे हैरानकुन मिसाल, इन्फ्लुएंजा वायरस है। सूअर इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए एक मिक्सिंग वेसल का काम करता है। सूअर एक ही वक्त में इंसानी और परिंदों के इन्फ्लुएंजा से मुतासिर हो सकते हैं, जिससे नए खतरनाक और वाबाई स्ट्रेन्स पैदा होते हैं। 2009 की H1N1 वबा और 1918 का स्पेनिश फ्लू, दोनों का गहरा ताल्लुक स्वाइन इन्फ्लुएंजा से था। 14 सदियों पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वायरोलॉजी की किताबें या माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, उनके पास वही थी, और इस वही के जरिए इंसानियत को बताया गया इस जानवर से दूर रहो। लेकिन इस पाबंदी के पीछे हिकमत सिर्फ बायोलॉजी तक महदूद नहीं, एक रूहानी और इखलाकी तह भी है। इस्लाम सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करता, ये दिल और रूह की हालत पर भी असर अंदाज होता है। अजीम आलिम इब्नुल कय्युम रहमतुल्लाह अलैह ने खुराक और मोमिन की रूहानी हालत के दरमियान ताल्लुक पर रोशनी डाली है। जो हम खाते हैं वो हमारे जज्बात, रुझानात और किरदार पर असर अंदाज होता है। इस्लामी उलमा का अरसाई दरस से ये मानना है कि जानवर का गोश्त उस जानवर की खुसूसियत अपने अंदर रखता है।
सूअर खाने के मामले में बेपरवाह है, ये अपना और दूसरों का फूसला खाता है। उलमा ने गौर किया है कि सूअर में अपनी मादा के हवाले से गैरत और हिफाजत के फिदान होते हैं। कुरान सूरह अल बकरा की आयत नंबर 168 में फरमाता है, ऐ लोगों, जमीन में जो कुछ हलाल और तैयब है यानी पाक है उसमें से खाओ। हलाल और तैयब ये वो दोहरा मियार है जो इस्लाम खाने के लिए मुकर्रर करता है। सूअर वाज़े खुदाई हुक्म की बिना पर हराम है और अपनी बायोलॉजिकल फितरत की बिना पर तैयब भी नहीं है। इस सवाल को अक्सर एक चैलेंज के तौर पर पेश किया जाता है, अगर अल्लाह ने सूअर को पैदा किया है तो उसे हराम क्यों किया? इसका जवाब यह है कि तख्लीक और इजाजत दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अल्लाह ने जहर, आग और वायरसेस भी बनाए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान उन्हें खाएं या पी ले। अल्लाह ताला ने सूअर को पैदा किया है ताकि वो माहौल को साफ करे। तख्लीक के इस अजीम निज़ाम में इसका एक मकसद है, लेकिन इस मकसद में इंसानों का इसे खाना शामिल नहीं है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवार चीज़ें खम्र है और हर खम्र हराम है। इस्लामी फिक्र में एक बुनियादी उसूल है, ला दरार वला दिदार, ना नुकसान उठाओ और ना नुकसान पहुंचाओ। सूअर के गोश्त की मुमनात इस ढांचे में बिल्कुल फिट आती है क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। मजीद ये कि सूअर की मुमनात सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं थी। तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वही में वाज़े तौर पर लिखा है कि सूअर तुम्हारे लिए नापाक है, इसका गोश्त मत खाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीमात में भी यही पाबंदी थी। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का असली खुदाई पैगाम हमेशा एक जैसा रहा है कि सूअर मोमिनों की खुराक नहीं है। हजारों सालों तक नाजिल होने वाली इन वहियों में ये तसलसल खुद एक मौजिज़ा है कि इन सब का सरचश्मा एक ही खुदा है। इंसानी तारीख के ज्यादातर हिस्से में जिन कम्युनिटीज ने इस खुदाई पाबंदी पर अमल किया उन्हें इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो ऐसी बीमारियों से महफूज रहे जिनकी मौजूदगी का उन्हें इल्म तक नहीं था। इमाम अल गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक खुदाई अहकामात के पीछे हिकमत कई सतहों पर काम करती है, जिस्मानी, रूहानी, समाजी और प्योर सबमिशन के लेवल पर, जहां मोमिन बस अल्लाह की इताअत करता है। क़यामत की निशानियों में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में आएंगे तो वो सूअर को कत्ल करेंगे और जिजिया खत्म करेंगे। इसका मतलब उलमा ये बताते हैं कि वो सूअर खाने की आदत को मुकम्मल खत्म कर देंगे और असल खुदाई निज़ाम को बहाल करेंगे। सूअर मजहबी गुमराही और खुदाई कानून के तर्क करने की अलामत से जुड़ा है। आज जदीद न्यूट्रिशन साइंस ने भी ये साबित किया है कि प्रोसेस्ड पोर्क प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन करार दिया है। जो लोग हलाल खुराक पर चलते हैं उनमें ऐसे कैंसर्स की शरह काफी कम देखी जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद और कुरान को बेहतरीन इलाज बताया और खाने पीने में मॉडरेशन पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया कि पेट को 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए छोड़ना चाहिए। हर बार जब किसी मुसलमान को सूअर का गोश्त पेश किया जाता है और वो इनकार करता है तो उस लम्हे में उसे याद आता है कि वो अल्लाह का बंदा है और उसकी मर्जी अल्लाह के आगे झुकी हुई है। इब्न अल कय्यिम रहमहुल्लाह ने इसे तज़किया नफ्स यानी प्योरिफिकेशन का नाम दिया। अल्लाह जब किसी चीज से मना फरमाता है तो उसके बदले बेहतर चीज जरूर अदा करता है। बीफ, मटन, मुर्गी, मछली और दालों में वो सब गिज़ाइयत है जो इंसान को चाहिए। सूअर की ममानात इस्लाम महदूद सखावत में एक बहुत ही छोटा और मकसद वाला एक्सेप्शन है। जंगलात में जंगली सूअर मिट्टी की हवादारी और बीज फैलाने का काम करते हैं जो उनका माहौलियाती किरदार है। कुरान ने बड़ी हिकमत से सूअर का गोश्त कहा है, खुद सूअर के वजूद को बुरा नहीं कहा। यह अल्लाह की दी हुई फितरत के भी मुताबिक है जो इंसान को नुकसानदेह चीजों से रोकती है। आखिर में ये तवक्कुल का मामला है। अल्लाह के अहकामात के पीछे ऐसी वजूहात हैं जो हमारी महदूद अकल से बाहर है। मोमिन इस पर अमल करता है क्योंकि कुरान कहता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की है, साइंस इसे साबित कर रही है और उसकी अपनी फितरत इसे मानती है। ये सवाल कि अल्लाह ने सूअर क्यों पैदा किया जबकि वो इस्लाम में हराम है, दरअसल हिकमत के अजीम दरवाजे खोलता है। सूअर को एक मकसद के साथ पैदा किया गया, इसे रहमत के साथ हराम किया गया और इस पर हिकमत के साथ पाबंदी लगाई गई। अल्लाह हमें हिकमत अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी हिदायत की गहराई के लिए खोल दे और हमें उन लोगों में से बनाए जो अल्लाह का हुक्म सुनते हैं और इताअत करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।